हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। नॉट ओनली दैट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और personality development courses like spoken English course or motivational things, everything is available on this platform. You don't have to search anywhere, you don't have to look for anything anywhere. Best of the teachers, absolutely free content. So now on this happy note, I'm going to start with class 9 English sample paper, जो कि CBSE ने जो recently launch किया था उन्हीं lines पे create किया गया है. It's like a really good practice paper for you. So what you have to do now is take your notepad, take your pen, sit in front, keep a water bottle. Why? बिकॉज आपका ये जो पेपर है ये आपको 3 आवर्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में. सो एवरी टाइम आई टेल यू अ क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ एंड देन सी द आंसर. Right, you have to be honest with yourself. So here I'm going to start with this. Now remember that our beloved Chani ma'am, she has already completed the previous year question papers. She has completed your entire course in CRT solutions, and now I'm taking it forward with sample papers. ठीक है? Now, time allowed, you have got 3 hours. In 3 hours में you will get 15 minutes just to check your paper, go through the paper, understand कि क्या difficulty level है, आप किस section से start करना चाहते हो. उसमें should not start with writing your paper. The paper has got 3 sections. Section A would be reading, section B would be writing and creative writing and grammar, and section C would be your literature. You will get like internal choices. जैसे आपको बोला 5 में से 4 question करो या 3 में से 2 question करो, but all questions are compulsory. I'm going to start with section A. Let's not waste any time and begin. So read the passage given below. Have you ever failed at something so miserably that the thought of attempting to do it again was the last thing you ever wanted to do? This passage is beautiful, बहुत interesting passage, and not only because it has got a beautiful meaning, it has got some really good vocabulary words. इसका जो मीनिंग है वो इस वक्त हो सकता है आपको बहुत ज़रूरत हो उसकी. If you are feeling demotivated, this is definitely going to motivate you. So remember that when you are answering a reading comprehension, जो भी चीज़ें आपको important लगती है, जिसमें आपको लगता है question किया जा सकता है, उसको हमेशा underline कर लेना. यहाँ बोला है कि क्या आपने कभी किसी भी ज़िंदगी में, आपके अभी तक की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ आप बुरी तरीके से फेल हो गए हो, इतनी बुरी तरीके से कि उस पर्टिकुलर चीज़ को फिर से अटेम्प्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. If your answer is yes, you are not a robot. अगर तुम्हारा आंसर yes है कि हाँ मैं बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ में फेल हो गया था, अब मुझे वापस उस चीज़ को, उसके लिए अपेयर होने के लिए, उस चीज़ के लिए मुझे ट्राई करने के लिए बहुत डर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक रोबोट नहीं हो. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions and dreams. Robots mechanical devices होते हैं, but we have got emotions, dreams and feelings. We are all meant to grow and stretch despite our circumstances and our limitations. हम ह्यूमंस जो है ना, हमारा लाइफ का मोटो, हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें ग्रो करना है, हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे स्ट्रेच करना है सो दैट वी कैन अचीव थिंग्स. ना हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें रोक पाएँ, ना हमारी लिमिटेशंस हमें कोई लिमिट कर पाएँ. Flourishing and trying to make our dreams come true is great when life is going our way. अगर आपके साथ सब अच्छा हो रहा है और आपने बोला कि हाँ मैं तो क्लास में टॉपर भी हूँ, फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया, फिर मेरी जॉब भी लग गई, फिर मेरे को प्रमोशन भी मिल गए, इसमें कुछ नई बात नहीं है. नई बात ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सब हो रहा है. फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू इज ग्रेट व्हेन लाइफ इज गोइंग आवर वे. लाइफ हमारे हिसाब से चल रही है और हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, इट्स वेरी ईजी. बट वॉट हैपन्स व्हेन इट इज़ नॉट. लेकिन जब लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती तब क्या होता है? वॉट हैपन्स व्हेन यू फेल डिस्पाइट ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क. आपने बहुत मेहनत करी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप फेल हो गए तब कैसे फील होता है? Do again and again until you are do you stay down and accept the defeat, or do you get up again and again until you are satisfied? आप क्या करते हो? अगर आप हार गए तो आप हार मान के बैठ जाते हो, या आप हर बार जब हारते हो आप वापस खड़े होते हो और वापस अपने एम की तरफ जाते हो?
If you have a tendency to persevere and keep going, you have what the experts called grit. अगर आपके अंदर वो चीज़ है, वो जज्बा है कि जितनी बार आप हारते हो उतनी बार खड़े होते हो, उतनी बार आगे बढ़ते हो, तो एक्सपर्ट्स इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रिट. ओके, falling down or failing is one of the most agonizing, embarrassing and scariest human experiences. गिरना या हार जाना ह्यूमन एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है, क्योंकि हमें एम्बैरसमेंट होता है, हमें शर्म आती है, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम डर जाते हैं. But it is also one of the most educational, empowering and essential parts of living a successful and fulfilling life. लेकिन गिरना और हारना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीतना. ये सबसे ज़्यादा आपको सिखाता है, एम्पावर करता है. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखते हो. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ. डिड यू नो दैट परसिवरेंस, मतलब जो हम ग्रिट की बात कर रहे हैं, इज वन ऑफ द 7 क्वालिटीज दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द कीज टू पर्सनल सक्सेस एंड बेटरमेंट इन द सोसाइटी. क्या आपको पता है ये जो परसिवरेंस है 7 क्वालिटीज़ होती है, जो कि ये बोलता है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सोसाइटी में आपका एक नाम होना चाहिए, उसके लिए 7 क्वालिटीज़ चाहिए होती है. और ये 7 क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है ग्रिट. द अदर 6, अब ये 6 क्वालिटीज़ और कौन सी हैं? क्यूरियोसिटी, कि जब तक आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कुछ नया कर नहीं पाओगे. ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर थैंक यू का भाव होना चाहिए. If somebody is doing something for you, you cannot take the person for granted. आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. ऑप्टिमिज्म, यू कैन नॉट बी अ पेसिमिस्ट. आप हमेशा नेगेटिव नहीं सोच सकते, आपको हर कुछ नेगेटिव भी होता है उसमें भी आपको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा. सेल्फ कंट्रोल, इफ़ यू डू नॉट हैव सेल्फ कंट्रोल देन यू आर नथिंग मोर देन एन एनिमल, जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता. Social intelligence, you should know how to talk to people, you should know how to behave when you are around people. And zest, और आपके अंदर होनी चाहिए वो happiness, वो zeal. Thomas Edison is a model for grit for trying 1000+ times to invent the light bulb. जो थॉमस एडिसन है, हमें सबको पता है कि उन्होंने न्यूमरेबल अटेम्प्ट्स किए जस्ट टू क्रिएट द लाइट बल्ब. और वो जो है हमारे लिए ग्रिट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इफ़ यू आर रीडिंग दिस विद द लाइट्स ऑन इन योर रूम, यू नो वेल दैट ही सक्सीडेड. और अगर आप ये पढ़ रहे हो और आपके रूम की लाइट्स ऑन है, इसका मतलब आपको पता है कि थॉमस एडिसन जो है अपने मिशन में सक्सेसफुल थे. When asked why he kept going despite his hundreds of failures, he merely stated that they were not failures. जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार जो है आप निराश हुए, इतनी बार आप फेल हो गए, फिर भी आप क्यों कंटिन्यू करते? उन्होंने बोला मैं फेल कभी हुआ ही नहीं. There were hundreds of ways not to create a light bulb. जो मैंने 1000 अटेम्प्ट्स किए जिसमें मैं फेल हो गया, वो फेलियर था ही नहीं, वो तो ये था कि लाइट बल्ब ऐसे नहीं बन सकता. This statement not only revealed his grit but also his optimism for looking at the brighter side. इससे ये सिर्फ ये समझ में नहीं आता कि उनके अंदर ग्रिट था, बस ये भी समझ में आता है कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे, कितने पॉजिटिव थे. ओके, ग्रिट कैन बी लर्नड टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल. ग्रिट आपको और सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकती है. वन ऑफ द टेक्निक्स दैट हेल्प इज माइंडफुलनेस. एक टेक्निक होता है, इसका मतलब होता है माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल स्टे इन द मोमेंट बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट. माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप इस मोमेंट पे जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दे के करो. आप ये नहीं कि हम हैं क्लास में, हमारा दिल जो है वो प्लेग्राउंड में है, दिमाग हमारा घर में कि मम्मा ने क्या बनाया होगा उसमें है, हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट हैं, इसको नहीं कहते. इसमें आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी. इस वक्त अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो देन यू शुड बी टोटली इनटू दिस. यू शुड नॉट थिंक अबाउट 10,000 डिफरेंट थिंग्स. इसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने नया फ़ोन ले लिया, अरे यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अरे यार मेरा पेपर कैसा जाएगा. ऑल दीज अरे यार्स आर टू बी फ्लश डाउन इनटू द गटर. Okay, through the simple practice of mindfulness, this practice has been used to quiet the noise of their fears and doubts. जब आप इस मोमेंट में जीते हो, जब आप जो हो अपने आप के बारे में अवेयर हो और आप विदाउट जजमेंट अपनी चीज़ों को कर रहे हो, तब जो है आप अपने आप को जो है ना एक तरीके से अपने पूरे फियर्स और अपने पूरे डाउट्स को भगा देते हो.
Through the simple practice of mindfulness, individuals will have the ability to stop the self-sabotaging downward spiral of hopelessness, despair and frustration. अगर आप mindfulness की practice को follow करते हो तो आप जो है ना अपने ऊपर दया करना छोड़ दोगे, सेल्फ सैबोटेजिंग की जो ये एबिलिटी होती है ये ख़त्म कर दोगे। उसके अलावा जो आपके अंदर होपलेसनेस आ जाती है, अरे तो क्या ही होगा, ये कैसे ही हो पाएगा एंड ऑल, ये ख़त्म हो जाएगा। ना आपके अंदर दुख होगा ना फ्रस्ट्रेशन होगा। What did you do to overcome the negative and self-sabotaging feelings of failure? आपने क्या किया था जब आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आई थी बिकॉज यू फेल्ड मे बी? Reflect on what you did and try to use those same powerful resources to help you today. जो उस वक्त आपने किया था, आप उस चीज़ को सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो और उन्हीं पावर्स को आज यूज़ करो and you will be out of trouble. That is it. So this was our passage and this was really interesting. कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमको है ना कुछ सुनने की ज़रूरत होती है so that we can get out of that pit जहाँ पे हम फंसे हुए हैं ना, एक गड्ढे में हम फंसे हुए होते हैं और we don't know how can we get out. So कभी कभी हम कुछ read करते हैं and we know that yes we can get out. So I hope the same has happened to you and now we are going to answer the questions. On the basis of your understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. So if you have got 12 questions and in 12 questions में से 10 question करने हैं. What does being scared of failure mean? Failure से डरने का मतलब क्या है? We are not humans. We are humans, we are wise, none of these. इसका मतलब ये है कि हम humans हैं, which means हमारे अंदर feelings है, हमारे अंदर emotions और हमारे अंदर डर है. So the answer is B. Next is what makes humans different from robots? Humans को robots से कौन सी चीज़ है जो अलग करती है? Feelings, emotions, dreams या all of these? The answer is, what is the answer? All of these, of course. Next question is what is grit? Grit क्या है? हार नहीं मानना. मतलब अगर आप कभी हार गए तो भी आप रुक नहीं गए हो, आप चलते जा रहे हो, आप कोशिश करते जा रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसिवरेंस। इसी का जो नाम होता है वो होता है ग्रिट। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ। अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास में हाफ ग्लास फिल है तो मैं ये नहीं बोलूँगी हाफ ग्लास एम्प्टी, मैं क्या बोलूँगी हाफ ग्लास मतलब आधा ग्लास भरा हुआ है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच। आप नेगेटिव नहीं देखोगे, है ना, आप पॉजिटिव देखोगे। सो व्हाट इज ऑप्टिमिज्म? अ फीलिंग दैट नथिंग विल हैपन? नहीं, इसको ऑप्टिमिज्म नहीं कहते। अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, कुछ गलत हो जाएगा? नो। अ फीलिंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन, दिस इज ऑप्टिमिज्म, कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट इज गिव अ सिनोनिम ऑफ जेस्ट। जेस्ट का मतलब हैप्पीनेस, जील। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है जैसे कि आपकी एक फ्रेंड है, वो रोज़ आपसे बहुत अच्छे से बात करती है, एक दिन अचानक से मतलब वो आपको इग्नोर कर रही है, वो नहीं बात कर रही है, वो इंडिफरेंट है, मतलब जैसी वो होती है वैसी नहीं है, बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही है। अपैथी, एंथुसियाज्म और लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है? लेथार्जी मतलब बहुत ही ज़्यादा आलस भरा। अपैथी इज अगेन नेगेटिव, एंथुसियाज्म इज पॉजिटिव. So the answer is enthusiasm. Failure is a part of human life. Very easy. Next is dash have been described as the keys to personal success. Personal success में कौन सी की होती है? Failure, dejection और honesty? No. Grit, zest और optimism? Yes, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है। देखो यहाँ तो फेलियर है मतलब नेगेटिव, डिजेक्शन ये भी नेगेटिव, ऑनेस्टी पॉजिटिव है, ग्रेट पॉजिटिव, जेस्ट पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव, फियर नेगेटिव, लालच नेगेटिव, जेलसी नेगेटिव, एनवी मतलब किसी से जलना नेगेटिव, डिफेंसिव नेगेटिव, क्रूअल्टी नेगेटिव। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम गोइंग डाउन द लाइन्स ऑफ डिस्पेयर। कौन सी चीज़ है जो ह्यूमंस को बचाती है, इंडिविजुअल्स को बचाती है दुख के सागर में डूबने से? सो द आंसर इज क्यूरियोसिटी, मतलब कुछ नई चीज़ जानने की इच्छा, ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर थैंकफुलनेस है, इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट हो, या माइंडफुलनेस। व्हाट इज द आंसर? हमने एक ही चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। द आंसर इज माइंडफुलनेस। ग्रिट हेल्प्स यू टू बिकम। ग्रिट आपको क्या बनने में मदद करती है? फियरलेस, सक्सेसफुल, ब्रेव या अजाइल? आंसर इज सक्सेसफुल।
नेक्स्ट इज पिक द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रेसिंग फ्रॉम पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में डिस्ट्रेसिंग का जो सिनोनिम है वो है एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग मतलब परेशान होना, ठीक है। व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज टू स्टे इन द मोमेंट, इस वक्त में, इस मोमेंट में जीना। सेल्फिश होना, कॉशियस होना या होपलेस हो जाना, हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। व्हाट इज इट? माइंडफुल होना मतलब इस मोमेंट में जीना। थॉमस एडिसन हैज बीन प्रेजेंटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ grit. What is the answer? Grit. हो गया। तो this was our first passage. Very easy, very interesting, and I'm sure you must have learned something from this. अब आते हैं हम second passage की तरफ. Encouraged by germination and subsequent growth in bamboo plantations, Odisha's Athargarh Forest Division began casting seed balls inside different reserve forest areas to enrich food stock for wild elephants in the August of 2020. अब ये जो है एक फैक्चुअल पैसेज है, अभी जो हमने किया वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज था। So, encouraged by germination and subsequent growth in bamboo plantations. क्या हुआ बैम्बू प्लांटेशंस में? ये जो जर्मिनेशन और जो सब्सिक्वेंट ग्रोथ से एनकरेज होते हुए ओडिशा के अथरगढ़ फॉरेस्ट के जो डिवीजन है उसने क्या किया, सीड बॉल्स जो होते हैं, सीड बॉल्स मतलब आप जो सीड्स होते हैं उसको आप ना उसमें मिट्टी के बॉल्स बना के उसको आप फेंक देते हो, तो क्या होता है वो धीरे धीरे ना उससे प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये उन लोगों ने किया, क्यों किया? जो वाइल्ड एलिफेंट्स जो होते हैं उनके लिए खाना स्टॉक करने के लिए। कब किया था? अगस्त ऑफ 2020। A seed bomb is a little ball generally made up of a combination of compost, clay and seeds. क्या करते हो, जैसे आप घर में भी अपने सीड बॉल्स बना सकते हो। So if you have got some seeds, उस सीड्स में आप क्ले मतलब मिट्टी और कंपोस्ट मतलब खाद, इन दोनों इनका मिक्सचर बनाओ एंड जस्ट थ्रो देम, वो कहीं ना कहीं जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जर्मिनेशन हो जाएगा। The growth in bamboo plantation is expected to meet the need of the elephants that often stray out of the forest and raid human habitation. अब ये जो ग्रोथ है बैम्बू प्लांटेशन में, इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? इज एक्सपेक्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ द एलिफेंट्स। इससे क्या होगा, एलिफेंट्स की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकेंगी, जिसकी वजह से जब वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो क्या होता है, फॉरेस्ट से बाहर चले जाते हैं और ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ ह्यूमन रहते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। Villages who bear the brunt of the elephant attacks have come forward to prepare the bamboo seed balls and scatter them in 38 reserve forests under the Athargarh फॉरेस्ट डिवीजन। अब ह्यूमंस जो है, विलेजर्स जो हैं जिन्होंने ये जो एलिफेंट्स जो पूरा आके तहस नहस कर देते हैं उन सबको झेला है, तो उन्होंने क्या किया, वो सामने आए हैं, उन्होंने जो बैम्बू सीड बॉल्स जो होते हैं ना, इनको हर तरफ जो है छिड़कना चालू किया है, फेंकना चालू किया है, सो दैट यू नो एलिफेंट्स की मदद हो पाए, उसकी वजह से उनकी मदद हो पाएगी। Bamboo shoots are relished by elephants. We are highly optimistic that it will meet the food requirement of wild elephants in their own habitats. अब ये जो बैम्बू शूट्स होते हैं ना, ये एलिफेंट्स बहुत पसंद करते हैं खाना, तो वो लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर ये बैम्बू शूट्स हर जगह प्लांट हो गए तो एलिफेंट्स की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो इससे ख़त्म हो जाएगी और फिर वो लोग जो हैं वो इनके अपने ही हैबिटेट में खुश रहेंगे, वो ह्यूमन हैबिटेशन के पास नहीं आएंगे। They will not stray out of the forest in search of food, said Sasmita Lenka, अथरगढ़ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। उन्होंने कहा कि अगर उनके ही हैबिटेट में उनका फूड रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो वो बिना मतलब के फॉरेस्ट से बाहर जो है ह्यूमन हैबिटेशन के पास नहीं आएंगे। किसने कहा है ये? सस्मिता लेंका, जो कि अथरगढ़ डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। ओके। For restoration of bamboo forests, a massive awareness campaign was launched in all the villages hit by elephant depredation. अब जो ये जो बैम्बू फॉरेस्ट को जो रीस्टोर करने के बारे में सोचा गया था, तो अ मैसिव अवेयरनेस कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन ऑल द विलेजेस में एक कैंपेन को अवेयर करने के लिए जो है एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया गया था एलिफेंट डिप्रेडेशन के थ्रू। 1 quintal of bamboo sweets were brought from जाशीपुर in मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। 1 क्विंटल मतलब एक पूरा क्विंटल जो है बैम्बू सीड्स को लेके आया गया था। कहाँ से लेके आया था? जाशीपुर इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अब ये सब अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। Making seed balls and scattering them in the forest is quite a time consuming task. अब सीड बॉल्स बना के उसको पूरे फॉरेस्ट में स्कैटर करना, फैलाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है।
However, the villagers joined the campaign hoping to ensure the bamboo plants will keep the elephants in the forest rather than straying into their villages. लेकिन इसमें जो villagers थे उन्होंने इस कैंपेन को ज्वाइन किया. क्यों? क्योंकि उनके लिए भी उम्मीद की किरण थी कि अगर फॉरेस्ट में ही एलिफेंट्स के लिए इनफ फूड हो गया तो वो जो है विलेजर्स के पास आके उनकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करेंगे. The survival rate ranged between 50 and 60%. The man-elephant conflict is complex. अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सर्वाइवल रेट होता है बहुत कम होता है. एलिफेंट का साइज देखा, उसके सामने ह्यूमन तो नहीं लगता. 50 to 60% सर्वाइवल चांस होता है. मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. नो वन हैज सिंपल सोल्यूशन. वी आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. सिंपल सोल्यूशन तो किसी के पास नहीं. एलिफेंट अगर आए और तबाही मचाए तो आप रोक नहीं पाओगे. तो सिंपल सोल्यूशन किसी के पास नहीं है. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को वो लोग देख रहे हैं. वी विल कीप ऑन क्रिएटिंग बैम्बू प्लांटेशन इनसाइड फॉरेस्ट, सेड मिस लेंका. मिस लेंका ने कहा कि हम जो है फॉरेस्ट के अंदर बैम्बू प्लांटेशंस करते रहेंगे. ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल प्लान हो सकता है. ओके अब ये था आपका सेकेंड पैसेज. अगेन यू हैव लर्न समथिंग न्यू. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव गॉट 12 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं. The purpose of the above passage, इस passage का purpose क्या है? To highlight the man-elephant conflict in Odisha and the solution to the conflict. जो ओडिशा में man elephant का conflict चल रहा है उसको highlight करना, उसका solution ढूंढना. Highlight the wildness of the elephants in Odisha. ओडिशा में elephants कितने ज़्यादा wild हैं, कितनी problems हो रही है वो highlight करना. Highlights the conniving nature of the men in Odisha. जो वहाँ के जो मेन है उड़ीसा में उनका नेचर डिस्क्राइब कर रहे हैं. हाईलाइटिंग द वायलेंस अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ अथागढ़ फॉरेस्ट. अथागढ़ फॉरेस्ट में कितना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है. नो, द आंसर इज वेरी सिंपल. मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, जो उड़ीसा में मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको हाईलाइट किया गया, उसका सोल्यूशन भी बताया गया है. सिलेक्ट द ऑप्शन that gives the correct meaning of the following statement. क्या स्टेटमेंट दिया है? बैम्बू शूट्स आर relished by elephants. relish करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चाव से आप किसी चीज़ का मज़ा उठा रहे हो, उसे relish करना कहते हैं. Elephants love to eat bamboo shoots. Yes, that is right. Elephants have to eat bamboo shoots for better growth. नहीं, ये कंप्लेन नहीं है कि नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी पीना पड़ेगा. Elephants despise का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगना. And both A and B. The answer here is elephants love to eat bamboo shoots. According to the passage, the seed bombs made for the restoration of the bamboo forest is a. अब ये जो seed bombs बना रहे हैं ये लोग, ये necessary step है, unnecessary है, complex है, ridiculous है, या none of these? The answer is none of these, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा step है. Select the option listing the ingredients of a seed bomb. अब seed bomb के ingredients को list करते हुए जो है हमको यहाँ पे बताना है. बैम्बू शूट्स, ठीक है, ये चाहिए. क्ले, बिल्कुल मिट्टी तो चाहिए. ग्रास, घास क्यों लगाओगे आप उसमें, ये नहीं चाहिए. कंपोस्ट, यस, खाद चाहिए. सीड्स मतलब यहाँ पे अब बैम्बू शूट्स तो नहीं चाहिए, बैम्बू शूट्स तो सीड्स से आएंगे. सो व्हाट डू वी वांट? सीड्स, कंपोस्ट एंड क्ले. मतलब 3 to 4. सो 2, 3, 4 कौन सा है आंसर? हमारा डी आंसर है. सो दैट इज आवर आंसर. Who helped the villagers in casting the seed bombs in the Athagढ़ forest? Villagers की मदद किसने करी अथागढ़ फॉरेस्ट में सीड बॉम्ब्स को कास्ट करने में? Villagers from the other states, their family members, अथागढ़ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, both A and C. The answer is अथागढ़ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे. Okay? This passage shows that the villagers making seed bombs to restore the bamboo forest. Why? अब ये पैसेज हमें बताता है कि विलेजर्स ने जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनकी मदद की थी ये जो सीड बॉम्ब्स हैं इनको स्कैटर करने में. ऐसा क्यों किया था उन्होंने? आंसर इज वेरी सिंपल. बिकॉज एक तो एलिफेंट्स आते थे विलेज में खाना ढूंढने के लिए, उसके बाद वो पूरा जो ह्यूमन हैबिटेशन में पूरी एकदम कियोस कर देते थे, और उसके बाद ये जो एलिफेंट सर्च फॉर फूड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेन एंड एलिफेंट्स, और उससे के बीच में झगड़ा होता था. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज वेयर आर द सीड बॉम्ब्स बीइंग स्कैटर्ड? सीड बॉम्ब कहाँ स्कैटर किए थे उन्होंने? ऑफकोर्स कहाँ किए थे? इन 38 रिजर्व फॉरेस्ट दैट कम अंडर द अथागढ़ फॉरेस्ट डिविजन. What has encouraged people to scatter seed balls in the forest? ये जो लोग थे इनको किस चीज़ ने encourage किया कि हाँ भैया seed balls डालें? Because
यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ द अबव, मतलब जर्मिनेशन ऑफ बैम्बू प्लांटेशन और उनका सब्सिक्वेंट ग्रोथ। उन्हें पता था कि बैम्बूस लगाएंगे तो एलिफेंट्स की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं के हैबिटेट में पूरी हो जाएगी और उसकी ग्रोथ भी सब्सिक्वेंट होती है इसीलिए। द मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा होता है, वो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ये आपके पैराग्राफ में दिया है। Who bear the brunt of elephant attacks? किसको एलिफेंट्स का गुस्सा और ये सब सहन करना पड़ता है? विलेजर्स को करना पड़ता है। ऑब्वियस आंसर। What is the synonym of subsequent? Subsequent का synonym होता है ensuing. ओके ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको बट इट्स ओके, अब याद हो जाएगा। What is the meaning of brunt as given in the passage? ये brunt बार बार वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? The main impact, मतलब एक्चुअल उसकी जो सजा है वो किसे मिल रही है। Okay, so this was our reading part. I hope you understood the two passages clearly. अभी ही आपको कोई पैसेज में डिफिकल्टी है तो आप उसको नोट डाउन कर लो। पैसेज इजी था, लेंदी था, लेकिन पैसेज इजी था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन ग्रामर इज गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इनके अगेंस्ट में ऑप्शन दिए हैं। सो एज पर द ऑप्शन, टेंसेस को, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज गोइंग टू फिट इन हियर वो हमें देखना है। Sitting down for long periods can dash the chances of mobility problems later in life according to some scientists. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से अगर आप एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठते हो तो आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर आपको मोबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, विच मीन्स दैट आपको जो है चलने में, स्पाइन में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। सो यहाँ पे क्या है, कैन, इसमें ऑप्शन है इंक्रीज, इंक्रीजिंग, हैव इंक्रीज्ड और इंक्रीजेस। अब यहाँ देखो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। ये इट कैन इंक्रीजेस, नो इट कैन इंक्रीज द चांसेस। ये एक फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट बताते टाइम हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज। Sitting and watching television for prolonged periods can dash threefold more chances of developing a walking difficulty in later life. अगर आप बहुत घंटे घंटे भर तक जो है एक ही जगह में, एक ही पोजीशन में जब आप टीवी देख रहे होते हो, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स का मतलब होता है बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक, इट कैन डैश थ्रीफोल्ड, इट कैन कॉज, इट कैन कॉजेस। अगेन ये एक फैक्ट बताया जा रहा है, मतलब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और ये सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, एक जगह करके और एक जगह बैठना, इसका मतलब दो तीन चीज़ें नहीं बोल रहा है, वो एक ही बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैन कॉजेस, कैन कॉज, कॉजिंग। कॉजेस तो हो नहीं सकता, सो द आंसर इज इट कैन कॉज। ओके, देन वी हैव the research dash on a group of healthy people between the ages of 50 and 71 for 10 years. अब यहाँ पे बोलते हैं the research dash on a group, the research conducts, is conducting, was conducted, had conducted. अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो है 50 से 71 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं, जो हेल्दी पीपल हैं, उनके बारे में एक रिसर्च की गई थी, जिसके बेसिस पे ये पूरा वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं। की गई थी मतलब यहाँ हम पास्ट की बात करें, क्या आ जाएगा, वॉज कंडक्टेड। सिटिंग फॉर आवर्स विथ लो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी डैश टू बी वेरी हार्मफुल। अगर आप घंटों भर एक ही जगह पे बैठे हो जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वो क्या बोल रहा है, डैश टू बी वेरी हार्मफुल। फाइंड टू बी वेरी हार्मफुल, वॉज फाउंड, हैड फाउंड, वॉज फाइंडिंग। इसको पाया गया था कि ये बहुत हार्मफुल है, तो हम क्या बोलेंगे, was found to be very harmful। मतलब एक जो आपने स्टडी किया उसमें आपने ये देखा कि ऐसा बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, ये हो गया हमारा गैप फिलिंग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब लास्ट पॉइंट क्या बचा है, पार्टिसिपेंट्स who dash television for 4 to 5 hours every day their risk of mobility disability dash higher than those who did not। ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो दिन में 4 से 5 घंटा टेलीविज़न देखते हैं, उनको मोबिलिटी इश्यूज बहुत आते हैं। सो यानी अब पार्टिसिपेंट्स हु डैश, हु वॉचिंग, अभी देख रहे हैं नहीं, हु वॉचेस, वॉच्ड,
was watching। अब यहाँ पे आप बता रहे हो एक आपने कंडक्ट किया है सर्वे, उस सर्वे में जो लोग 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते थे उनको ज़्यादा इशू आया। यहाँ पे आप एक पास्ट की घटना के बारे में बता रहे हो तो आप क्या बोलोगे, वॉच्ड। जिन्होंने 4 से 5 घंटा टेलीविजन देखा था उनको ज़्यादा इशू आया था। सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, पास्ट की बात करो, इसलिए वॉच्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑफ रिस्क ऑफ मोबिलिटी एंड मोबिलिटी डिसेबिलिटी डैश हायर देन, उनका ज़्यादा था, इज हायर देन नहीं, हम यहाँ पे भी पास्ट की बात करेंगे, वॉज हायर देन, दैट इज इट। ये था पहला आपका मतलब गैप फिलिंग का क्वेश्चन। अब आता है एरर फाइंड करना है। तो ये कुछ आपका एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ गलतियां हैं, आपको वो गलतियां निकालनी है और उन्हें सही भी करना है। पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज हैज़, अब यार ये देखो सिंपल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। पीपल मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं और पीपल के साथ जो वर्ब आएगा वो भी आएगा प्लूरल, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, राइट। पीपल, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो पीपल हैव लॉस्ट टच इन नेचर। नेचर में नहीं, नेचर के साथ उनका जो टच है वो खत्म हो गया है, तो इन नहीं आएगा, क्या आएगा, लॉस्ट टच विथ नेचर, आप किसी से आपका संबंध टूट जाता है। अवे फ्रॉम नेचर देयर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वन इज लॉस्ट इन द कॉन्क्रीट जंगल्स। अब वो बोल रहा है अवे फ्रॉम नेचर देयर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो अब इसमें क्या है, अवे फ्रॉम नेचर देयर नहीं आएगा, क्यों, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचर से जब वो लोग हट गए, इट्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यहाँ हम नेचर की बात करें, मैंने आंसर्स दिखा दिए क्या, सॉरी, ठीक है, देयर नहीं आएगा, नेचर से दूर हटके, उस नेचर की पीस और ट्रैंक्विलिटी, कामनेस से दूर होने के बाद, तो यहाँ पे इट्स आएगा। वन इज लॉस्ट इन द कॉन्क्रीट जंगल्स, वन इज लॉस्ट, इंसान जो है, ये जो क्या बोलते हैं, सीमेंट के जो जंगल बनाए हैं हमने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसमें खो गया है, वन इज लॉस्ट, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, जंगल्स नहीं आएगा, जंगल होगा। एक इंसान जो है, वन इज लॉस्ट इन द कॉन्क्रीट जंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज गुड टू ट्रेवल्स, इट इज गुड टू ट्रेवल्स टू अ प्लेस, तो यहाँ ट्रैवल्स नहीं आएगा, ट्रैवल आएगा। इट इज गुड टू ट्रैवल टू अ प्लेस व्हेन द मैग्निफिसेंट ब्यूटी ऑफ नेचर कैन बी एडमायर्ड, व्हेन नहीं, जहाँ, तो व्हेन नहीं आएगा, जब नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, जहाँ पे जो है नेचर की मैग्निफिसेंट ब्यूटी को आप एडमायर कर सको एंड ऑल्सो एंजॉयड, और उसे एंजॉय कर सको, एंजॉय किया था, पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही, तो एंजॉयड नहीं आएगा, एंजॉय आएगा। एंड ट्रिप टू सच अ प्लेस इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर टू, एंड ट्रिप, आर ट्रिप, एंड क्यों लिखा है, टी जो है कोई वॉवल तो है नहीं, अ ट्रिप टू सच अ प्लेस इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर टू, सो यहाँ पे क्या आ गया, ये खत्म हो गया। ये हैं आपके सारे आंसर्स, फटाफट देख लेते हैं, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आएंगे एरर वाले। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर अच्छे से किया है तो मान लो एरर में फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। अब है इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड इन ईच लाइन, ओमिटेड वर्ड के पहले का वर्ड और बीच का मतलब लास्ट वाला वर्ड लिखना है, इस तरीके से अपन को लिखना है, ठीक है। Yesterday a lady was while crossing the road, a lady was what, क्या कर रही थी वो, a lady was यहाँ पे है injured, ठीक है। क्यों पता चला इंजर्ड, क्योंकि आपने देखा कि अच्छा आगे आपने बताया पुअर लेडी इज रिडिंग इन पेन, और उसने जो देखा कि भैया लग गई, तो इसलिए हमने इसको समझा क्योंकि शी वॉज इंजर्ड वाइल क्रॉसिंग द रोड, शी हरिंग टू नहीं, अब ये बताएंगे शी वॉज हरिंग, तो शी वॉज हरिंग टू कैच एन ऑटो रिक्शा व्हेन अ स्कूटरिस्ट, एक स्कूटरिस्ट ने उसको मार दिया, हिट हर, सो हिट इज मिसिंग हियर। Poor lady writhing in pain, poor lady was writhing in pain, was मतलब वो पेन में करहा रही थी, while many onlookers around her, onlookers मतलब जो लोग देखते हैं ना, while very many onlookers अब उसके पास gather हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, तो ये वर्ड आपको आना चाहिए। Finally someone her up, someone her up, तो someone picked her up, किसी ने उसे उठाया, someone picked her up and took her to the hospital, and took her to the hospital. The doctors left for the day, doctors जा चुके थे, doctors
had left for the day, but a nurse her first aid. But a nurse gave her first aid. Clear with this? अब इसमें क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा ये वाला आंसर. अब है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस. द टेबल इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट. जब भी सो और दैट का अपने पास कॉम्बिनेशन होता है और इसको अपन को यूज करना है टू, तो अपन कैसे बोलते हैं, द टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट. सिंपल, बहुत ज़्यादा भारी है लिफ्ट करने के लिए. द टेबल इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट और द टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी विल नॉट बाय एन ओल्ड स्कूटी. इसमें इसको अफर्मेटिव में बनाना है. अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस. शी विल नॉट बाय एन ओल्ड स्कूटी को अपन क्या बोल सकते हैं, वो पुरानी स्कूटी नहीं खरीदेगी. इसको मुझे एक ऐसे सेंटेंस में बोलना है जिसमें नहीं वर्ड नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो नई स्कूटी खरीदेगी. वो पुरानी स्कूटी नहीं खरीदेगी का मतलब क्या हो गया, वो नई स्कूटी खरीदेगी. तो आप क्या बोलोगे, शी विल बाय अ न्यू स्कूटी. सिंपल. नेक्स्ट इज ही इज टीचिंग हर. वो उसे पढ़ा रहा है. इसे हमें पैसिव वॉइस में यूज करना है. तो ये हर जब यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट तो वो बन जाएगा शी. ठीक है. अब ये हो जाएगा शी इज टीचिंग, मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज के साथ लगा देंगे इज बीइंग. राइट. बीइंग मतलब आगे आपका कंटिन्यूस बता दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टॉट. शी इज बीइंग टॉट बाय. ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो वो हो जाएगा हिम. शी इज बीइंग टॉट बाय हिम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस शी अटेंडेड द मीटिंग. उसकी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी उसने मीटिंग अटेंड की. सो इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है. व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं विथ जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? फैन बॉयज, हमने पढ़ा था ये. फैन बॉयज मतलब एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. ये बेसिक, जब दो सेंटेंसेस बेसिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस शी अटेंडेड द मीटिंग, इसको अपन क्या बोल देंगे, शी वॉज इल येट शी अटेंडेड द मीटिंग. शी वॉज इल बट शी अटेंडेड द मीटिंग. आवर विक्ट्री इज सर्टेन, हमारी जीत पक्की है. इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताना है. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस होते हैं ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब वो होता है जैसे कि क्या होता है, इफ, वाइल, व्हेन, दे, दैट, एक्सेट्रा. सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है लेकिन दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया तो क्या, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है. राइट. सो इफ आई गो टू स्कूल आई विल गेट गुड मार्क्स. तो यहाँ पे आई विल गेट गुड मार्क्स ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इफ आई गो टू स्कूल ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है. लेकिन दोनों मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहे हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आवर विक्ट्री इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट वी विल बी विक्टोरियस. अब दैट वी विल बी विक्टोरियस ये जो है आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इट इज सर्टेन ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है. आर वी क्लियर विद दिस? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, रिमेंबर दिस थिंग दैट ग्रामर में हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. प्लीज मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक दैट. Read the dialogue and write it in reported speech by filling in appropriate words. अब यहाँ पे है हमको कुछ एक डायलॉग दिया है, इसको हमको रिपोर्ट करता है. मतलब हमने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है ना, उस तरीके से हमको लिखना है. तो ये बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है. आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे, आज मुझे मार्केट जाना है. तो द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड दैट, आई की जगह आ जाएगा शी, हैव की जगह आ जाएगा हैड. शी हैड टू गो टू द मार्केट, टुडे का हो जाएगा दैट डे. ओके. So the wife told her husband that she had to go to the market that day. The husband asked, husband ने क्या पूछा, what do you want to buy? तुम्हें क्या खरीदना है? The husband asked the wife, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, what did she want to buy?
ये what do you want to buy का हो जाएगा what, do का हो जाएगा did, you का हो जाएगा she, what did she want to buy. तो ये देखो यहाँ पे ओके या फिर आप बोल सकते हो what she wanted to buy, दोनों सही है. Read the dialogue and write it in reported speech by filling in appropriate words. मतलब अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, रिपोर्टेड स्पीच. तो अब आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हैं, जो डायलॉग दिया हुआ है बिटवीन अ वाइफ एंड अ हस्बैंड, आपको इसे रिपोर्ट करते हुए लिखना है. ओके, इट्स वेरी इजी. आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे. I have to go to the market today. This is what wife said. So अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है. The wife told her husband that कि उसे उस दिन मार्केट जाना था. I का क्या हो जाएगा she. Have का क्या हो जाएगा had. She had to go to the market. Today क्या हो जाएगा. Today will change into that day. Right? Next is हस्बैंड ने क्या बोला. व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम्हें क्या खरीदना है. यहाँ क्या लिखा है. द हस्बैंड आस्क्ड द वाइफ. अब है व्हाट डू यू वांट टू बाय, तो अपन क्या बोलेंगे. व्हाट डू यू की जगह हो जाएगा शी, वांट का हो जाएगा वांटेड. व्हाट शी वांटेड टू बाय, व्हाट शी वांटेड टू बाय. द वाइफ रिप्लाइड दैट आई वांट टू बाय अ गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड. तो ये आई का क्या हो जाएगा. वाइफ ने रिप्लाई किया कि उसे उनकी फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदना था. आई वॉन्ट के जगह हो जाएगा शी और वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड. शी वॉन्टेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड. राइट. नेक्स्ट इज हस्बैंड सेज व्हेन विल यू गो. सो यहाँ पे क्या हुआ. द हस्बैंड एनक्वायर्ड व्हेन विल यू गो, व्हेन शी वुड गो. राइट. विल का क्या हो जाएगा वुड. ठीक है. when she would go. clear with this. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मेंबर ऑफ ग्रुप इज कॉन्टेस्टिंग डैश इलेक्शन. हर मेंबर जो है ग्रुप का वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है. सो हर मेंबर हो जाएगा ईच, एनी होगा नहीं. राइट. ईच हो जाएगा. अब यहाँ पे कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन, वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट डैश वेरी कोल्ड सो आई विल स्टे एट होम. बाहर बहुत ठंड है इसीलिए मैं घर पे ही रहूंगी. बाहर बहुत ठंड है. अभी हम प्रेजेंट की बात करें. जब हम प्रेजेंट की बात करें तो वॉज और विल तो आएगा नहीं. बाहर बहुत ठंड है. अब यहाँ ठंड का होना इज बी का फॉर्म. बी का फॉर्म क्या होता है. इज एम आर होता है प्रेजेंट में. राइट. और यहाँ पे हम किसको क्या बोल रहे हैं. हम ठंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा. एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा इज. इट इज वेरी कोल्ड सो आई विल स्टे एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल हेल्प यू डैश यू विश. अगर आप चाहोगी तो मैं आपकी मदद करूंगी. आई विल हेल्प यू इफ यू विश. सो यहाँ क्या आ जाएगा अगर, इफ. अब नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग में आ जाते हैं. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ अबाउट द रैम्पेंट यूज ऑफ पॉलीबैग्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. ऑल्सो डिस्कस हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. सो पॉलीबैग्स जो होते हैं उनका कितना ज़्यादा जो यूज़ है, किस तरीके से उनको प्रिवेंट कर सकते हो, उनका इफेक्ट्स क्या होता है एनवायरनमेंट पे, इस तरीके से आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है. जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं रिमेंबर दैट देयर हैज़ टू बी एन इंट्रोडक्शन. राइट. एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके पैराग्राफ का. फिर आपके पैराग्राफ में बॉडी पार्ट आते हैं जिसमें आप उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे डिटेल्स दोगे. इंट्रोडक्शन में आप डिटेल्स नहीं देते. इंट्रोडक्शन में आप या तो कोट दोगे, ठीक है, या तो आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप जो हो सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में बताओगे आप किस बारे में बात करने वाले हो, लेकिन आप कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दोगे. जैसे नंबर्स हुए, ठीक है, कोई फिगर हुआ, कोई परसेंटेज हुआ, ये सब आप जो हो इंट्रोडक्शन में नहीं देते हो. और उसके बाद आपको आता है कंक्लूजन. मतलब आपको समराइज करना पड़ेगा, अपने पूरे इसको कंक्लूड करना पड़ेगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली आप इसमें जो है पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज वी हैव गिवन अ टाइटल टू आवर पैराग्राफ. बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स अ मस्ट. People using polythene bags in homes, shops, eating joints and in other places is a common sight.
पॉली बैग्स यूज करना इज लाइक एनी अदर थिंग्स, राइट? एवरी डे वी सी, आप मार्केट जाते हो तो आप कोई छोटी सी भी चीज खरीदते हो, सो दे गिव यू अ पॉली बैग. आजकल काफी कम होता जा रहा है, बट स्टिल वी यूज पॉली बैग लाइक एनीथिंग. According to a survey conducted, about 75% of people use polythene bags to carry and keep things. एक सर्वे कंडक्ट जो हुआ था उसके हिसाब से 75% जो लोग हैं वो अभी भी जो है पॉलीथीन बैग्स कैरी करते हैं अपना सामान रखने के लिए. 20% यूज पेपर बैग्स. जो 20% लोग हैं वो पेपर बैग्स यूज करते हैं, whereas only 5% यूज क्लोथ और जूट बैग्स. सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो क्लोथ या जूट बैग्स यूज करते हैं. These findings show an alarming trend. और इनसे जो है हमें समझ में आया है कि कितना गलत जा रहे हैं हम. पॉली बैग्स cause irreparable harm to the environment. जब हम पॉली बैग यूज करते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को ऐसा डैमेज करता है जिसको हम सही नहीं कर पाते हैं. They cause food contamination and when thrown away they clog drains. So यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि उससे क्या हो जाता है, एक तो फूड कंटेमिनेट होता है, प्लास्टिक जो होता है उसमें आप खाना नहीं रख सकते, उसमें खाना खराब होता है. उसके अलावा वो जो है आपके जो ड्रेन से जब पानी मतलब वो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है डिग्रेड तो होता नहीं है, तो जब वो डिग्रेड नहीं होता तो क्या होता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो वो नदी में नालों में हर जगह फंस जाता है. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन पोरस. अब ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब ये खत्म नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, और नॉन पोरस होते हैं मतलब इसके आसपास से मतलब कुछ जा नहीं पाता, ये पानी को सोखते नहीं हैं. दे रिमेन इन द सॉइल एंड वाटर बॉडीज फॉर ईयर्स. ये सालों तक जो है सॉइल में और वाटर बॉडीज में रहते हैं. दे ऑल्सो कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर. इसके कारण जो है जो हमारा धरती के अंदर का जो पानी होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है. काउज एंड डॉग्स ऑफन डाई ड्यू टू स्वेलोइंग दीज बैग्स. अब जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या काउज होते हैं इनकी बहुत बार डेथ हो जाती है बिकॉज ये क्या होता है, पॉली बैग खा लेते हैं. Hence, plastic bags should be substituted by more environmentally फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. अपन इसको एनवायरमेंटल करते हैं, ठीक है. एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक रिसाइकल्ड पेपर बैग्स और क्लोथ और जूट बैग्स. इसीलिए पॉली बैग्स को हमें रिप्लेस करना चाहिए किस चीज़ से, जैसे आप पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हो, जूट बैग्स यूज़ कर सकते हो. इवन शॉपकीपर्स शुड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स. शॉपकीपर्स को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो नहीं देंगे तो हम ले नहीं पाएंगे. A complete ban and heavy fine on use of polythene bags is urgently needed to save the environment. एक complete ban on poly bags और उसके अलावा जो है उसका मतलब एक heavy fine भी, कि अगर आप पहले तो यूज़ करना नहीं और अगर आपको यूज़ करते हुए देखा गया तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना लगेगा. इसको अभी ही जो है लागू कर देना चाहिए. Why? Because it is the need of the environment. सो अब नेक्स्ट है, अब देखो इसमें पैराग्राफ राइटिंग में यू विल गेट ऑप्शंस. सो जैसे ये एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ पीपल हैव लॉस्ट देयर सिविक सेंस इन इंडिया. किस तरीके से लोग ने अपना सिविक सोशल सेंस जो है भूल गए हैं. यू कैन एलैबोरेट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब इसमें आपको पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मोर ड्रिवन टूवर्ड्स पर्सनल गेन्स. आज जो लोग हैं वो जो है सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए. दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड नथिंग एल्स. लेस टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर कल्चर्स, रिलीजन एक्सेट्रा. दूसरों के कल्चर, दूसरों के रिलीजन के लिए टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है. मतलब इट्स लाइक माई वे और हाई वे, विच इज़ नॉट ओके. डिसरिगार्ड फॉर लॉ अ प्राइमरी कॉज ऑफ पीपल लैकिंग सिविक सेंस. लोग जो है कानून की इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से सिविक सेंस को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है. मतलब सिविक सेंस खराब होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोग जो हैं हमारे इधर के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं हैं, वो लोग कानून की इज्जत नहीं करते. अब इन सब से हमको एक पैराग्राफ लिखना है. इन हिंट्स तो आपको दी हुई है, आप अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. देखते हैं इसको किस तरीके से लिखना है. पीपल हैव लॉस्ट देयर सिविक सेंस. लोग जो है अपना सिविक सेंस खो बैठे हैं. Civic sense is based on social and moral values. A lot of people assume that civic sense is only about keeping the roads, streets and public property clean and safe. ठीक है, तो civic sense जो है हमारे social और moral value पे based है. बहुत सारे लोगों को लगता है civic sense का मतलब क्या है कि public property को सही तरीके से use करना. But civic sense is more than that. लेकिन सिर्फ civic sense
यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। लॉ अबाइडिंग बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर फेलो मैन, मेंटेनिंग गुड बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा ऑल मैनिफेस्ट सिविक सेंस। सिविक सेंस के अंदर क्या क्या आता है कि एक, आपको कानून की इज्जत करनी चाहिए, आपको अपने साथ के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, आपको पब्लिक प्लेस पे अच्छा बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए। इन इंडिया देयर इज जनरल डिसरिगार्ड फॉर सिविक सेंस। इंडिया में सिविक सेंस एक अलग ही लेवल पे उसको जो है डिसरिगार्ड किया जाता है। राइटिंग ऑन कंपाउंड वॉल्स, बसेस, ट्रेन्स, मॉन्यूमेंट्स, रैश ड्राइविंग, स्मोकिंग इन पब्लिक एंड थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स एक्सेट्रा। इंडिया में मतलब गंद मचाने के लिए अलग ही लेवल पे होते हैं। मतलब आपका जहाँ जिसको जो मन करता है वो लिखता है, वॉल्स पे, बसेस में, ट्रेन में, मॉन्यूमेंट्स में रैश ड्राइविंग करते हैं, स्मोक करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, कहीं पे भी इधर उधर गार्बेज फेंक देते हैं। ऑल दीज एक्शंस इंडिकेट अ लैक ऑफ सिविक सेंस अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये सारी चीज़ें क्या बताता है कि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। Lack of education and disregard for law are the primary reasons for lack of civic sense. एक तो जब आपके पास एजुकेशन नहीं होती तो आपको नहीं पता होता सही गलत क्या है। दूसरी चीज़, जब आपको डर नहीं होता कि जो कानून है वो आपको, जैसे अगर आपने ऐसा इधर उधर कचरा फेंका तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको जो है हैवी फाइन देना पड़ेगा। जब आपके अंदर डर ही नहीं है तो आप क्यों नहीं करोगे, आपका जहाँ मन करेगा आप करोगे। सो ये दोनों सबसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से सिविक सेंस जो है वो कम है हमारे पास। The government should spread awareness as to how a good civic sense can lead to peace in society and help to maintain hygienic surroundings. गवर्नमेंट को लोगों को इस बात से अवेयर कराना चाहिए कि अगर आपका सिविक सेंस अच्छा है तो किस तरीके से आप सुख और शांति के साथ अपनी सोसाइटी में रह सकते हो और किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स को हाइजीनिक रख सकते हो। Proper values should be instilled in students so that they grow up to become responsible citizens. बच्चों के अंदर जो है सही वैल्यूज आज हमें इंस्टिल करनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन जाएं। Attempt any one from A and B given below. अब हम आते हैं डायरी राइटिंग में। You are Anirban. You recently visited your grandparents' house. अब अभी अपने grandparents के house में गए थे। Write a diary entry expressing your happiness and joy. आपको क्या करना है, एक डायरी एंट्री लिखनी है कि किस तरीके से आपको वहाँ कितना मज़ा आया। सो डायरी एंट्री का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है डे, देन कॉमा, देन डेट, देन वी लीव अ लाइन, देन वी राइट द टाइम, वी लीव अनदर लाइन, देन वी राइट डियर डायरी, दैट इज अ सैल्यूटेशन, पुट अ कॉमा एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर डायरी एंट्री। Yesterday was a very special day for me because I visited my grandparents. अब रिमेंबर डायरी एंट्री आपकी बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता अपार्ट फ्रॉम दिस। अब आप इसको जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। वर्ड लिमिट को थोड़ा ध्यान में रखना और मेक श्योर दैट आप जो लिख रहे हो उसका एक अच्छा फ्लो और अच्छी वोकैबुलरी हो, ठीक है। सो येस्टरडे, कल का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गया था। आई वॉज इमेंसली एक्साइटेड टू सी देम आफ्टर माई लास्ट विजिट 6 months बैक। 6 महीने पहले मैं उनसे मिलने गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। आई अलॉन्ग विद माई डैड स्टार्टेड अर्ली बट ट्रैफिक कंजेशन took us twice the normal time to reach our grandparents' house. ठीक है, उसने बोला मैं अपने फादर के साथ जो है निकला था लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें नॉर्मल से डबल टाइम लग गया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक पहुंचने में। ग्रैंड मदर हैड कुक्ड मैनी टेस्टी डिशेज फॉर अस। ग्रैंड मदर जो हमारी हैं उन्होंने काफ़ी सारे टेस्टी डिशेज बनाए हुए थे। वी टॉक्ड, वॉच टीवी, enquired about their health, had long discussions on different topics and had fun flipping over the pages of many old albums. So हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, टीवी देखा, मस्ती करी, एक दूसरे के हाल चाल पूछे और उसके बाद काफ़ी देर तक पुराने एल्बम भी देखे। Post lunch, as I lay down on the cot in the big courtyard, I felt tired. लंच के बाद जब मैं अपने कॉट में बैठ गई जो कि बड़े से बरामदे में था तो मैं थोड़ी थक गई थी। My eyelids got heavier. यहाँ फुल स्टॉप करते हैं। My eyelids got heavier and finally I was fast asleep. तो मेरी आंखें बहुत हैवी हुई और फाइनली मैं सो गई। When I woke up, it was already time for the evening tea. जब मैं उठी तब शाम की चाय का टाइम हो चुका था। जब मैं उठा, grandma had prepared laddus for us. Those were yummy to the core. उन्होंने हमारे लिए लड्डू बनाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा यमी थे। Gradually started getting darker and was time to go home. अब धीरे धीरे क्या हुआ, शाम होने लग गई थी, हमें वापस घर जाना था। Grandma packed some laddus for my mom and sister. उन्होंने मेरी माँ के लिए और बहन के लिए कुछ लड्डूस पैक किए।
Grandpa packed some homegrown veggies and fruits for us to take home. ग्रैंडपा ने हमारे लिए घर में उगाई गई सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो भी पैक कर दिए. इट वॉज अ वंडरफुल डे स्पेंट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई नेक्स्ट विजिट. मुझे बहुत मज़ा आया उनके यहाँ पे उनके साथ, और अब मैं अपनी जो नेक्स्ट विजिट है उसके लिए वेट कर रहा हूँ. ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट भी देख लेते हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरी राइटिंग. One sunny morning, I woke up and I wasn't in my comfortable bed. I was in my rabbit's hutch. I was small with soft brown fur all over my body. So यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इस पॉइंट से अब आपको मान लो कि आप एक रैबिट हो, सो आपको उसके हिसाब से एक स्टोरी प्लान करनी है. ठीक है, तो ये आपको जो है स्टार्टिंग दी हुई है, इसके हिसाब से स्टोरी लिखनी है. So one sunny morning, I woke up and I wasn't in my comfortable bed. एक दिन मैं उठा और मैं अपने कंफर्टेबल बेड पे नहीं था. I was in my rabbit's hutch. मैं तो रैबिट के हच में था. I was small with soft brown fur all over my body. मैं छोटा सा हो गया था, मेरी पूरी बॉडी में सॉफ्ट ब्राउन कलर का फर था. Oh no, I had turned into a rabbit. अरे मैं तो रैबिट बन गया. I wanted a glass of milk and warm toast. Wait a minute. मुझे तो मस्त गरम गरम दूध और टोस्ट चाहिए था. If I'm a rabbit, I won't get milk and warm toast. अगर मैं रैबिट हूँ तो मुझे दूध और टोस्ट तो मिलेगा नहीं. I will get dirty water, floppy scraps and wet grass. मुझे गंदा पानी और इधर उधर के पड़े हुए स्क्रैप मिलेंगे और गीली घास. Yuck! Just then my little sister Shreya came and tipped a bag of scraps on the floor. तभी मेरी छोटी बहन कौन थी, श्रेया आई और उसने क्या हुआ, कचरा नीचे डाला. Took some seeds from the seed box and dropped them in the red plastic seed bowl. और कुछ seeds निकाले और seed bowl में कुछ seeds भी डाल दिए. She then picked some wet grass and threw them next to the scraps. फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसने कुछ जो है गीली घास निकाली और वो भी डाल दी. Then she filled the dirty water bottle and said, "Enjoy." She walked back inside the house and left me be all on my own. फिर उसने उसमें जो है थोड़ा सा जो है गंदा पानी डाला, उसके उसने बोला चलो enjoy करो, और वो चली गई. I thought the hard seeds looked like cereal, but did they taste like cereal? जो इतने hard seeds थे मुझे लगा ये तो cereal जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या इनका taste cereal जैसा होगा? So I tried them. Surprisingly, I liked the taste. मतलब मुझे तो taste अच्छा लगा. Then I scampered over to the dirty water and had a little sip. Only because the water looked so dirty with green floaty bits in it. उसके बाद क्या किया, I scampered over, मैंने जो है dirty water हटा दिया and सादा कुछ हटा के एक छोटा सा सिप लिया. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना ग्रीन ग्रीन कुछ बिट्स तैर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. Then I hopped up the ramp, snuggled down in the hay and went to sleep. फिर मैं जो घास पे जाके गया और सो गया. When I woke up, I slipped down the ramp and ran for a while. फिर मैं जब उठा तो मैंने स्लिप किया, नीचे आया और थोड़ी देर तक मैं सिर्फ थोड़ी देर तक दौड़ रहा था. Finally, I scampered sleepily up the ramp and found a comfortable position in the soft warm hay. फिर मैं गया और बहुत comfortably बैठ गया. I fell into a deep sleep. फिर मैं वापस सो गया. When I woke up, I was in my own bed. Yay, I'm not a rabbit anymore. और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं तो वापस अपने comfortable bed में हूँ, मतलब मैं तो वापस rabbit बन चुका हूँ. See, ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी थी. आप तो अपने हिसाब से कितनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख सकते हो. सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. अब हम आते हैं फाइनली लिटरेचर पार्ट पे. लिटरेचर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 4. 2 करने देंगे, 2 प्रोज से आएंगे, 2 पोम से आएंगे. एंड देन यू हैव गॉट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो आपकी जो बीहाइव बुक है उससे 5 क्वेश्चंस आएंगे, सप्लीमेंट्री रीडर से 3 क्वेश्चंस आएंगे. 5 में से 4 करना है, 3 में से 2 करना है. एंड फाइनली आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे. 2 क्वेश्चंस बीहाइव से, 2 क्वेश्चंस आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से, और दोनों में से आपको एक एक करना है. आर वी क्लियर विद दिस? चलिए स्टार्ट करते हैं. So read the extract given below and answer the questions that follow. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा है? The fun they had, of course, the mechanical teacher. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. मतलब वो पूरा याद करी थी कि जो उसके ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे थे तो उनका स्कूल कितना डिफरेंट होता था, मैकेनिकल नहीं होता था, वैसा होता था जैसा हमारा था.
They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो एक ही चीज़ पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर सकते थे, बात कर सकते थे. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इट रेफर्स, इट किसके बारे में बोल रहा है? एक मशीन सिमिलर टू अ कंप्यूटर, जो उनकी होमवर्क मशीन होती थी. मार्गी फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस विद अ साई एज हर लाइफ वॉज. मार्गी ने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है मान लिए. क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ कैसी थी? मैकेनिकल लाइक अ मशीन. उसकी लाइफ कैसी थी? एकदम मशीन की तरह मैकेनिकल थी. मार्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द लाइफ ऑफ हर ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर बिकॉज शी वॉज. क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी? नहीं. क्योंकि उसको अपनी ग्रैंडफादर की लाइफ के बारे में सोचना था? नहीं. वो इस मशीन से बोर हो चुकी थी, थिंकिंग अबाउट टू गो टू स्कूल लाइक हिम. तो आंसर इज वो इस मशीन से बोर हो चुकी थी, इसलिए वो सोच रही थी ये सब. In this extract, the writer wants us to realize that the importance of. Writer क्या चाहता है कि हमको किस चीज़ की importance पता चले? Schools की, हमारी जैसे schools की. One another is, one another क्या है? Reflexive, personal, reciprocal या possessive pronoun. Possessive तो होगा नहीं. Possessive मतलब कैसा होता है? It is, I'll do it. जैसे कि possessive मतलब this is their bag, this is my bag, it is mine. राइट, इट इज़ योर्स, इट इज़ हर्स, इट इज़ हिज, ये हो गए पॉजिटिव. उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब जहाँ पे मैं बोल आई डू इट माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई, यू, मी, वी, दे, इट, ये सारे. तो आंसर क्या बचेगा हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. वन अनदर, ईच अदर, ये सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. अब सेकेंड अपने पास जो एक्सट्रैक्ट है वो है, व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन. सो जब मेरी मदर जो है संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब वो बता रही है कि जब संतोष जो था उसका भाई था वो पैदा होने वाला था, सॉरी बहन पैदा होने वाली थी. अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक चलते हुए मतलब एक राहगीर ने, जो एक बहुत अच्छा आदमी था, उसने उसको ब्लेसिंग दी और ये सोच के कि उसे लग रहा था कि इनको शायद बेटा चाहिए. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो उनकी जो दादी थी उन्होंने क्या बोला, हमें बेटा नहीं हमें बेटी चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उन्होंने वो ब्लेसिंग दे दी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसा कि किस्मत ने चाहा था उस ब्लेसिंग ने काम किया. संतोष वॉज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ 5 सन्स. 5 बेटे थे, लड़के थे, उसके बाद ये 6th बेटी हुई थी. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, मतलब इनके 5 भाई थे. शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो इसमें वो कैसी, मतलब कहाँ से थी वो? जोनियावास से थी, रेवड़ी के डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट से. अब इस पे कुछ क्वेश्चन है. सबसे पहला है, संतोष वॉज बोर्न एज द 5th चाइल्ड, राइट? 6th चाइल्ड. नेक्स्ट इज, व्हेन संतोष वॉज टू बी बोर्न अ सेंट ब्लेस्ड हर मदर दैट शी वुड गेट अ सन. संतोष ग्रैंडमदर डिड नॉट वांट अ सन, उनको क्या चाहिए था? उनको एक बेटी चाहिए थी. संतोष वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम जोनियावास इन रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. चूज द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी. डेस्टिनी का सिनोनिम क्या हो सकता है? फेट. फेट मतलब किस्मत. ओके, अब आते हैं हम पोम वाले एक्सट्रैक्ट पे. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. अब ये जो पोम है इसमें देर किसको कह रहा है? तो इसमें ऑब्वियसली देर इज इनिसफ्री. द पोएट वुड फील पीसफुल इन द, कौन से टाइम में उसको पीसफुल फील होगा? मॉर्निंग टाइम में. द पोएट सेज दैट द साउंड ऑफ डैश विल ब्रिंग हिम एट पीस. किस चीज़ की साउंड आके उनको शांति मिलेगी? क्रिकेट के इंसेक्ट की. The poet will see dash flying in the sky during the evening. Evening में उन्हें क्या दिखेगा आसमान में उड़ता हुआ? Linnet bird. Choose the synonym of peace. अब peace का synonym क्या हो जाएगा? Irritation, calmness. अब यहाँ पे ये है peace, P-E-A-C-E, मतलब शांति. So आंसर क्या हो जाएगा? Calmness. Okay? अब क्या है next अपन देख लेते हैं हमारा prose. It takes much time to kill a tree, not a simple job of the knife.
will do it, it has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So, यहाँ पे अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. According to the stanza, it takes longer to destroy a. What does it take long to destroy? It takes longer to destroy a tree. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर पे? Tree. Next is jab in this stanza means. अब यहाँ पे जो stanza में बोला गया है that not a simple jab of the knife. नाइफ का जैब मतलब नाइफ का एक जो हिट होता है उससे इजीली नहीं मरते ये. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट अ सिंपल जैब. यहाँ पे जैब का मतलब है सडन रफ ब्लो, जो सडनली कोई एक रफ ब्लो करता है. द ट्री हैज ग्रोन डैश रूटेड इन द सॉइल. ट्री कैसे ग्रो हो चुका है? क्विकली, वीकली, ग्रेजुअली या विद ट्रंक. द आंसर इज धीरे धीरे ट्री ग्रो होता है ना. एक दिन में कोई एक छोटा सा सीड तो ट्री नहीं बनता, ग्रेजुअली होता है मतलब धीरे धीरे होता है. द ट्री टेक्स इन सनलाइट, वाटर एंड डैश ग्रो एंड एयर. ठीक है. चूज द सिनोनिम ऑफ एब्जॉर्बिंग. एब्जॉर्बिंग मतलब सोखना, अंदर लेना. सोकिंग, इजेक्टिंग, इजेक्ट करना मतलब आउट. डिस्ट्रैक्टिंग मतलब हटा देना. एब्स्टेनिंग. सो आंसर इधर पे है सोक करना, सोकिंग. नाउ द नेक्स्ट इज दैट वी आर डन विद द एक्सट्रैक्ट्स. अब आपको 40 to 50 वर्ड्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं 4 out of 5. How did the doctor react when he encountered the snake? जैसे ही डॉक्टर ने स्नेक को देखा तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? The doctor was scared, but he showed great presence of mind. डॉक्टर था तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का बहुत अच्छा परिचय दिया. He neither jumped nor cried. ना उन्होंने जंप किया ना वो रोई. He sat on the chair holding his breath. उन्होंने अपनी सांस रोक ली और चेयर पे बैठ गई. His body was as still as a stone, but his mind was active. उनकी जो बॉडी थी वो एकदम स्टोन की तरह स्टिल थी, लेकिन उनका माइंड जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था. सो जो हमने बोला ना हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट, तो हमें आज सिर्फ रिएक्शन बताना है, उन्होंने आगे क्या किया वो नहीं बताना है. What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates and environment? ऐसे कौन से इंसिडेंट्स थे जब संतोष माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशन में जा रही थी तो उससे ये पता चलता है कि वो अपने टीममेट्स को लेके और एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थी. So during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber, but unfortunately she could not save him. So जब 1992 के एवरेस्ट मिशन में जब वो जा रही थी तो एक क्लाइंबर को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया बिकॉज ही वॉज नॉट ओके, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनकी जान नहीं बचा पाई. However, she saved the life of another climber, मोहन सिंह, बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम. लेकिन उन्होंने एक और क्लाइंबर की जान बचाई जिनका नाम था मोहन सिंह, अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके. She also collected and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas. उन्होंने 500 किलो कचरा जो है हिमालय से इकट्ठा करके वो नीचे लेके आई थी. इससे समझ में आता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए कितनी ज़्यादा कंसर्न थी. How do the people pollute the holy Bagmati? जो लोग हैं वो होली बागमती को किस तरीके से पोल्यूट कर देते हैं. पीपल ड्रॉप द विल्टेड फ्लावर्स एंड लीव्स इनटू द रिवर. जो भी भगवान पे चढ़ाए हुए जो फ्लावर्स होते हैं, जो सूख चुके होते हैं, जो विल्टेड होते हैं, वो उनको सब पानी में डाल देते हैं. दे ऑल्सो वॉश देयर क्लोथ्स इन द रिवर वाटर एंड चिल्ड्रन बेथ इन द रिवर. वो जो है कपड़े भी वहीं धो लेते हैं, लोग वहाँ नहा भी लेते हैं. कॉर्प्सेस आर ऑल्सो क्रिमेटेड नियर द रिवर. कॉर्प्सेस मतलब जो मुर्दा जो बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको भी रिवर के पास में ही क्रिमेट कर देते हैं. ऑल दीज एक्ट्स पोल्यूट द वाटर. और इन सब के कारण पानी पूरा पोल्यूट हो जाता है. वाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन who identify like whose identity he wants to take on. So इंट्रूडर ने गेरार्ड की आइडेंटिटी को कॉपी करने का क्यों सोचा? The intruder chooses Gerard as the man whose identity he wants to take on. अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि पास्ट हो जाएगा. Who wanted to take on because Gerard resembles the intruder in terms of build and form. क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस था, मतलब उसका जो हाइट था, हेल्थ था, वो उसी से मिलता था. एंड ऑल्सो बिकॉज गेरार्ड लिव्स अ मिस्टीरियस लाइफ, क्योंकि गेरार्ड जो है बहुत ही मिस्टीरियस लाइफ जीता था.
ही वॉन्टेड टू किल गेरार्ड एंड इम्पर्सोनेट हिम, वो चाहता था कि वो गेरार्ड को मार डाले और उसको इम्पर्सोनेट कर ले। नेक्स्ट, हु वॉज शिव सुब्रमण्यम अय्यर, सो कौन थे ये? शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज कलाम साइंस टीचर, वो उनके साइंस के टीचर थे। ही इन्वाइटेड हिम टू हैव फूड एट हिज हाउस इवन दो हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, उन्होंने उसको अपने घर में खाने पे बुलाया था जबकि उनकी जो वाइफ थी एकदम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी। When his wife refused to serve food to कलाम, जब उन्होंने कलाम को खाना देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम थे, he himself served him and sat beside him to eat his meal, वो उनके बगल में जाके बैठे, उन्होंने खुद खाना सर्व किया, उनके साथ खाना खाया। He invited कलाम for dinner again, उन्होंने कलाम को खाने पे फिर से बुलाया। He observed Kalam's hesitation but told him that such problems had to be faced to change the system. जब उन्होंने वापस कलाम को खाने पे बुलाया तो कलाम ने हेजिटेट किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये काम हमें करना पड़ेगा जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आता। He encouraged कलाम to go for higher studies, उन्होंने उसको encourage किया कि तुम्हें और आगे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब हमारा बी हाइव के क्वेश्चंस हो गए। सप्लीमेंट्री रीडर से 2 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली 3 आएंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस की पूरी स्टैच्यू थी वो कैसी थी? High above the city, on a tall column stood the statue of the happy prince, मतलब सिटी के एकदम ऊपर में एक टॉल से कॉलम के ऊपर जो है हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू थी। He was gilded all over with thin leaves of fine gold, पूरे उनमें जो फाइन गोल्ड के लीव्स लगे हुए थे। He had 2 bright sapphires for his eyes, आंखों में उनके 2 bright sapphires थे, ब्लू एकदम, and a large red ruby glowed on his sword's hilt, और उनकी जो सॉर्ड होता है, सॉर्ड मतलब तलवार, ठीक है, ये जो सॉर्ड होता है इसका जो हिल्ट है इसमें एक बहुत बड़ा सा रूबी लगा हुआ था। सो दिस इज हाउ इट लुक्ड। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द नरेटर ऑफन विजिट हिज ओल्ड स्कूल? Okay, why did the narrator often visit his old school? How did his old teachers encourage him? The narrator had joined high school after finishing his junior high. जूनियर हाई को ख़त्म करने के बाद उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया। ही वॉज द हेड ऑफ हिज क्लास इन ओल्ड स्कूल एंड ही फेल्ट स्ट्रेंज ऑन स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब वो अपनी क्लास में अभी तक तो हेड थे, अब एकदम से नया चालू करने में उनको अजीब लग रहा था। हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। अब जो एक ग्रुप होता है, जब अपना ग्रुप टूट जाता है तो वी डोंट फील गुड, राइट? तो उनका एक वो जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में चले गए। सो ही फेल्ट आइसोलेटेड एंड मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल एंड हिज टीचर। तो वो एकदम अकेले हो गए, वो अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे थे। सो ही विजिटेड देम रेगुलरली, इसीलिए वो स्कूल बार बार जाते थे उनसे मिलने के लिए। हिज ओल्ड टीचर्स एनकरेज्ड हिम टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज एंड टोल्ड हिम दैट इफ ही ट्राइड टू एडजस्ट हिमसेल्फ देन ही वुड एंड अप लविंग हिज न्यू स्कूल मोर देन ही लव्ड हिज ओल्ड वन। उनके टीचर्स उनको एनकरेज करते थे कि स्कूल में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, लोगों से बातें करो। क्यों? क्योंकि आपको उस नए स्कूल में खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, और एक बार आपने एडजस्ट किया, ट्राई किया, तो आपको अपना नया स्कूल पुराने स्कूल से भी ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द बेगर टोल्ड सर्जी? वाई डिड सर्जी थ्रेटन टू कॉल द पुलिस? तो बेगर ने सर्जी को क्या बोला, उसने क्यों धमकाया कि वो पुलिस को बुला लेगा? The beggar told Sergi that he was a village school teacher but had lost his job due to intrigues. तो बेगर ने सर्जी को बताया कि वो एक स्कूल का टीचर था लेकिन उसकी जॉब चली गई बिकॉज ऑफ द इंट्रीग्स। नाउ ही हैज़ अ जॉब ऑफर इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा बट ही हैज़ नो मनी टू गेट देयर। अब उनके पास कलुगा में जो है एक जॉब ऑफर है लेकिन उनके पास वहाँ जाने के पैसे नहीं है। देयरफॉर ही वॉज बेगिंग फॉर मनी, इसीलिए वो भीख मांग रहा था। सर्जी रिकॉल दैट ही हैड मेट द सेम मैन 2 days बैक। उसको याद आया कि ये 2 दिन पहले इसी आदमी से मिला था। एट दैट टाइम ही हैज सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट हु हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तब उसने कहा था कि एक स्टूडेंट है जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। सर्जी स्कोल्स द मैन फॉर लाइंग एंड थ्रेटन्स टू कॉल द पुलिस। वो उसको डराता है, वो उसको धमकाता है कि तुम इस तरीके से झूठ मत बोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ओके, अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या है? वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। व्हाट सिस्टम इज द सेंटेंस रेफरिंग टू? ये अभी हमने पढ़ा है। ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? व्हाट आर सच प्रॉब्लम्स? ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? डज द टेक्स्ट सजेस्ट दैट द प्रॉब्लम्स हैव टू बी टैकल्ड, हैव बीन टैकल्ड? क्या ये
पैसेज ये बताता है कि प्रॉब्लम्स पूरी खत्म हो चुकी है, उनको टैकल कर लिया गया है। This sentence is referring to the system of separation on the basis of caste and creed. ये जो सेंटेंस है ये कौन सी प्रॉब्लम को रिफर कर रहा है, जहां आप कास्ट और क्रीड के बेसिस पे एकदम जो है मतलब सेपरेशन करते हो। This system gives rise to the problems of social inequality and communal intolerance. ये जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, ये क्या करता है, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब ये रिच है, ये पुअर है, इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी को और बढ़ावा देता है। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, अपने रिलीजन को तो आप रिस्पेक्ट करते हो लेकिन सामने वाले के रिलीजन को आप रिस्पेक्ट नहीं करते। ब्राह्मण मीन्स दैट यू हैव द पावर टू डू एनीथिंग, एंड अगर आपसे लोअर कास्ट का कोई है सो इट द पर्सन इज ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। तो ये जो है ये क्या है, ये कम्युनल इंटॉलरेंस है। तो जो हमारा जो सिस्टम है वो ऐसी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। The text suggests how these problems can be tackled. ये सजेस्ट करता है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, टैकल हुई नहीं है। अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। अब्दुल कलाम आज़ाद के जो टीचर थे वो एक अलग ही इंसान थे, वो रिबेल थे, वो जैसे भेड़ चाल में नहीं चलना चाहते थे। डिस्पाइट स्टिफ opposition from his conservative wife, he invited Abdul Kalam to his home for a meal. इतना ज़्यादा opposition था उनकी वाइफ जो कि बहुत कंजर्वेटिव थे, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने घर में अब्दुल को एक खाने के लिए बुलाया। When his wife refused to serve a Muslim boy in her kitchen, he was not perturbed. मतलब जब उनकी वाइफ ने बोल दिया मैं इस मुस्लिम इंसान को खाना नहीं खिलाऊंगी, तो उन्होंने जो है उनको निकाला नहीं। He served Abdul Kalam food with his own hands. उन्होंने उसे खुद अपने ही हाथों से खाना परोसा। Next time Abdul Kalam visited his teacher's house, his wife took him inside her kitchen and served him food with her own hands, suggesting that these problems can be addressed on a person-to-person basis. जब next time अब्दुल कलाम जो थे उनके घर खाना खाने गए तो उनकी वाइफ ने खुद उनको लेके वो अंदर गई, किचन में लेके जाके वहाँ उन्हें बहुत प्यार से खाना परोसा। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि शायद इसी तरीके से जो प्रॉब्लम है ये 1-on-1 करके ही जो है सुलझाई जा सकती है। आप कितने भी बड़े बड़े जो है स्पीचेस दे दो, नहीं होगा, एक एक पर्सन को इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी ये चीज जो है खत्म होगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द स्नेक हैज बीन कंपेयर्ड टू 3 ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर दे, हाउ आर द ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू द स्नेक। यहाँ पे जो स्नेक है इसको 3 चीजों से कंपेयर किया गया था, कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरीके से वो स्नेक से सिमिलर हैं। The snake has been compared to 3 objects, namely a rubber tube, a thick leaden rod, and a rod made of molten fire. There is a close similarity between these things and the snake. तो snake किस किस चीज़ से कंपेयर किया था, एक तो रबर ट्यूब से कंपेयर किया गया था, एक एकदम थिक सी मोटी सी लेडन रॉड थी, और एक था मोल्टन लावा जो मोल्टन फायर जो था उससे बनी हुई रॉड। और इनमें तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। कैसे? द स्नेक फॉल्स ऑन द फ्लोर विद अ डल थड, जो स्नेक है वो एकदम फ्लोर पे गिरता है। कैसे गिरता है? एकदम ढप की आवाज़ आती है। When a rubber tube falls on the ground, it also produces a similar sound. जब एक रबर ट्यूब को नीचे फेंकते हैं तो उसकी भी ऑलमोस्ट सेम आवाज़ आती है। Hence a snake is compared to a rubber tube, इसलिए उसको रबर ट्यूब से कंपेयर किया गया है। When the snake tightens its grip around the doctor's arm, it is compared to a thick leaden rod. Lead is heavy, so is the snake. The doctor felt the load of the snake like that of the lead. अब उसको एक लेडन जो है रॉड से, लेड का पूरा जो रॉड होता है उससे क्यों कंपेयर किया? क्योंकि जब वो उनके हाथ पे बंध गया था तो वो बहुत हैवी था, लेड हैवी होता है, तो उनको एकदम ऐसा लग रहा था कोई हैवी सी चीज़ उनके हाथ पे बंधी हुई है, इसीलिए उन्होंने उसको लेडन रॉड से कंपेयर किया। Thirdly, the snake is compared to a rod made of molten fire. अब जो स्नेक है उसको किससे कंपेयर किया गया है? एक रॉड जो कि मोल्टन फायर से बना है। द डॉक्टर फेल्ट दैट द स्नेक वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग हिज आर्म। ऐसा लग रहा था कि उनके जब वो हाथ पे बंधा था तो धीरे धीरे वो उसको जकड़ रहा है। He felt that the strength of his arm was being drained off. उन्हें ऐसा लगा उनके हाथ की जो पूरी ताकत है वो बह जा रही है। And the rod of molten fire had coiled itself on his arm. और ऐसा लगता कि कोई गरम गरम लोहे का जो पूरा एक रॉड है उसको उनके हाथ के आजू बाजू बांध दिया गया है। Hence, all the 3 comparisons are apt and most suitable. इसलिए तीनों comparisons बिल्कुल सही हैं और सबसे ज़्यादा suitable हैं। अब हम आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। ये जो है सप्लीमेंट्री रीडर से लिया हुआ है।
What sacrifice that bearman make for जॉन्सी, और दूसरा है ओल्ड, मतलब इसी का दूसरा पार्ट है, ओल्ड बेयरमैन सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ टू सेव अनदर लाइफ। इसमें कमेंट करना है। तो अपन ने द लास्ट लीफ पढ़ी है, उसका आंसर देख लेते हैं। Behrman was a 60-year-old painter who lived on the ground floor of a building in which Sue and Johnsy lived. बेरमैन जो थे 60 ईयर्स के एक पेंटर थे जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उसी बिल्डिंग में जहाँ स्यू और जॉन्सी रहते थे। ही वॉज अ कंपैशनेट मैन, वो बहुत ही जो है दयालु आदमी थे। When he came to know that Johnsy was depressed and that she believed that she would die as soon as the last leaf of the ivy creeper fell, ही बिकेम वरीड। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि जॉन्सी जो है डिप्रेशन में, और वो ये बिलीव कर रही है कि जो आइवी क्रीपर है उसका जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ही न्यू दैट द लीफ वुड डेफिनेटली फॉल इन द स्टॉर्मी वेदर। उन्हें पता था वो जो आखिरी पत्ता है वो इस जो तूफानी वेदर में पक्का गिर जाएगा। एंड देन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक जॉन्सी फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिप्रेशन, और उसके बाद जॉन्सी को उस डिप्रेशन में से बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा। सो ही गोज आउट इन द स्टॉर्मी नाइट एंड पेंट्स अ लीफ दैट अपीयर्स टू बी अटैच टू द आइवी क्रीपर। तो वो स्टॉर्मी नाइट में बाहर जाते हैं और एक लीफ पेंट करते हैं जो ऐसा लगता है कि उस पेड़ से लगी हुई है। Johnsy, on seeing the leaf, believes it to be real and comes out of her depression. Johnsy जब अगले दिन सुबह उस लीफ को देखती है तो उसको वो मान लेती है कि वो सही की लीफ है और वो अपने डिप्रेशन में से बाहर आ जाती है। She now has the will to live, अब उसके अब जीने की इच्छा आ जाती है। However, after spending the night in a storm, Behrman catches pneumonia. लेकिन रात भर पति जो ड्रॉ कर रहे थे वो उसकी वजह से उनको निमोनिया हो जाता है। His old body is not able to fight back the disease and he dies. अब उनकी जो उम्र हो चुकी होती है वो 60 ईयर्स की होते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो इस निमोनिया को झेल नहीं पाती और उनकी मौत हो जाती है। सो बेहरमैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेव जॉन्सी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस कर दी जॉन्सी की लाइफ सेव करने के लिए। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। अब गुरु जो है अपने अपनी जो शिष्य होते हैं उनकी लाइफ कैसे बचाते हैं। द गुरु ऑन हिज अराइवल विस्पर्स हिज प्लान टू हिज डिसाइपल, गुरु आते हैं और उसके कान में अपना जो है एक प्लान बताते हैं। He then requests the king to put him on stake first, तो इसको तो पहले स्टेक पे रखो। The disciple also requests the king to put him on stake first, कि भैया पहले मुझे स्टेक पे रखो। They both quarrel to be put on stake. King मतलब जो वो होता है गुरु होता है, वो बोलता नहीं पहले मेरे को, फिर वो बोलता नहीं पहले मेरे को। The king is not able to understand their behavior. King समझ ही नहीं पाता है दोनों क्यों बोल रहे हैं कि पहले मुझे स्टेक पे रखो, पहले मुझे स्टेक पे रखो। He asks for an explanation. वो बोलता है नहीं समझाओ क्यों मरना चाहते हो तुम लोग। The Guru explains that the stake is the stake of justice. वो जो स्टेक है वो जस्टिस का स्टेक है। It is new and has never had a criminal on it. ये एकदम नया है और आज तक कोई क्रिमिनल इसमें मरा नहीं है। Whoever dies on its first will be reborn as the king of the country and whoever goes next will be the minister. जो पहले मरेगा वो किंग बन जाएगा और जो दूसरी बार मरेगा वो मिनिस्टर बन जाएगा। The king on hearing this releases the disciple and decides to go on the stake himself. किंग जो है वो बोलता है नहीं ऐसे में डिसाइपल को हटा देता है और बोलता नहीं मैं खुद जो है जाऊंगा स्टेक पे। इन दिस वे द गुरु मैनेजेस टू सेव हिज डिसाइपल, और इस तरीके से वो अपने शिष्य को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। And that is it. Here we are done with sample paper 3. I hope you understood this well. Grammar part, reading part and literature part. You have got a lot of practice. I hope you understood this well. If in case you have any doubt, you can write it in the comment section and I'm there to help you. अब बहुत जल्दी मिलेंगे हम sample paper 4 के साथ with a lot of practice questions. Stay tuned, stay happy, stay hydrated, take care of yourself. Bye-bye.